मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार देवी और सज्जनों। छोटे छोटे सपनों से ही बड़े राष्ट्र का निर्माण होता है और छोटे छोटे उद्यमों से ही बड़े बदलावों का सूत्रपात होता है। एमएसएमई दिवस 2026 उद्यमी भारत कार्यक्रम के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उस क्षेत्र का उत्सव मनाने के लिए एकत्र हुए हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़, नवाचार का प्रेरक और करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का आधार है, हमारा एमएसएमई क्षेत्र। किसी के हाथ में औजार है, किसी के मन में नव विचार, कोई बुनता सपनों को, कोई गढ़ता नया संसार। इन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की गाथा महान, इनसे ही आत्मनिर्भर बनता मेरा भारत मेरा अभिमान। और इस अवसर पर भारत के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी की इस गरिमामयी एवं श्रद्धेय उपस्थिति के लिए हम कृतज्ञ हृदय से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मंच पर आसीन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करदलांचे, अध्यक्ष खादी और ग्रामोद्योग आयोग श्री मनोज गोयल, सचिव एमएसएमई श्री भरत खेरा का भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र, केंद्र सरकार के सम्मानित प्रतिनिधि, केंद्रीय मंत्रालयों के माननीय अधिकारीगण, फील्ड ऑफिसर्स, केवीआईसी, एनएसआईसी, एमगिरी के माननीय अधिकारीगण का भी हृदय से स्वागत है। और आज के इस पावन अवसर पर हम सब उन सभी उद्यमियों, शिल्पकारों, नवोन्मेषकों और कर्मयोगियों को नमन करते हैं जिनके श्रम, साहस और संकल्प से भारत की विकास गाथा को नई ऊंचाइयां प्राप्त हो रही हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देवी और सज्जनों, भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हमारे एमएसएमईज केवल उद्योग नहीं हैं। आप आत्मनिर्भर भारत के संकल्प, विकसित भारत के स्वप्न, करोड़ों भारतीयों की आकांक्षाओं के सशक्त वाहक हैं। I now have the honor to invite Shri Bharat Khera, Secretary, Ministry of MSME, to deliver the welcome address and provide an overview of the ministry's initiatives. On behalf of the Ministry of MSME, I extend a very warm welcome to Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan ji. It's really a special occasion for us to have him here on this day today. He has very kindly and graciously consented to be the chief guest for the MSME Day event. He has had a very old association with the sector, and he has also been the chairman of Choir Board for 4 years. So it's a pleasure to have you here, sir. It's my honor to welcome Honorable Minister Shri Jeetan Ram Manjhi ji. His constant encouragement and his dynamic leadership has really brought MSME center stage. I extend a warm welcome to Honorable MOS Sushri Shobha Karanlaje, whose constant guidance and encouragement has helped us in taking a number of new initiatives in the MSME sector. We have with us on the dais Shri Manoj Goyal, Chairman KVIC. He has steered some very innovative ideas, particularly in mainstreaming khadi among the youth. I would also welcome senior officers from our ministry, from other ministries and departments, Government of India, from the state governments, representatives from industry, including industry associations, entrepreneurs, artisans, PM Vishwakarmas, technology centers, NSIC, KVIC, Choir Board, NIMSME, MGIRI, all our autonomous and subordinate organizations, friends from the media, ladies and gentlemen. MSMEs hold the potential to transform economies, foster job creation,
and promote equitable economic growth. MSME Day aims to highlight their pivotal role and explore opportunities for their future advancement. I'll just give a brief overview of the MSME sector in India. Today, MSME sector contributes 31% to the GDP, 35% to the manufacturing output, and almost 50% to exports. With 8.8 crore enterprises already registered on the MSME portal, providing employment to 39 crore persons, MSME has become the second largest employer after agriculture. For achieving the vision of Viksit Bharat, the MSME sector would be the engine of growth and the primary catalyst, and the key enablers would be formalization, access to finance, access to technology, industry-grade skilling, access to market, digitalization, and infrastructure support. Formalization has been given the topmost priority by our ministry, sir. In fact, it was important to bring these informal micro enterprises within the fold of the formal MSME ecosystem so that the gateway opens up and they are able to access various benefits and schemes being extended by Government of India. And we have been able to achieve 5x growth in the last 3 years. From 1.6 crore, we have reached a figure of 8.8 crores. 40% of the registered MSMEs are women entrepreneurs. In fact, our ministry is implementing a number of schemes in bringing benefits to the MSME sector. The most critical pain point of MSMEs has always been access to credit. I am happy to share that the credit flow to MSME sector has increased by 268% in the last 11 years. We were at 10 lakh crores in 2014 and we have reached a figure of 37 lakh crore this year. There is a general perception that MSMEs are not worthy of credit. This perception is changing. The non-performing assets have been declining steadily. This is something which is a positive indicator for the banks also to extend their credit in the best possible manner. A major policy intervention has been credit guarantees, which government has provided. Almost 13 lakh crore of credit guarantee has been provided in the last few years. While debt financing is undoubtedly a critical enabler, equally important for growth is equity infusion. This concept of Self-Reliant India Fund, this was launched in 2020-2021, and this has been an extremely successful model. We have been able to leverage the strength of the private sector in providing growth capital to high potential MSMEs through this fund. This has been a resounding success. In today's time, technology adoption is no longer optional, it is a business imperative. That is the reason that we have set up 53 technology centers pan-India with the intent to equip them with modern tools, training and innovation support. As technology continues to evolve, enterprises will require a skilled and future-ready workforce. It's equally important to connect MSMEs to domestic and global markets. The ministries are supporting MSMEs to participate in trade fairs and exhibitions. We are also helping them onboard the public procurement process as well as the e-commerce platforms. I'll make a mention of PM Vishwakarma, which is a flagship scheme of our ministry. It is providing a holistic support to artisans from 18 trades. I take pride in sharing some figures from the khadi and coir sector, sir. There has been a 4x growth in the export of coir and coir products. We have reached more than 6,000 crores now, sir. And for khadi, there has been a 7x growth in the last 12 years. We have now reached a figure of more than 7,000 crores, sir. A major pillar of policy support is in giving preference to MSEs in public procurement. Today, 50% of the public procurement is being done through the micro and small enterprises. Delayed payments has always been a major bottleneck, particularly impacting the cash flows of the MSME sector. In this regard, the TREADS platform has been really a game changer. There has been an 8-fold increase in numbers and 9-fold increase in discounting volume in the last 4 years. Another major policy intervention for this sector has been the revision in classification and also the limits which had been assigned for investment as well as turnover. This has really incentivized the MSMEs to scale up. Going forward, the sector would continue to play a very pivotal role in our economy. On this day, I compliment all the stakeholders who have assembled here today and also all those all over the country who are contributing to the growth of this sector. With these words, I welcome you all once again to this event. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय।
देवी और सज्जनों, भारतीय परंपरा में सम्मान और अभिनंदन हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी से अनुरोध करती हूं कि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति जी को तोहफा भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और सबसे पहले हमारे देश की समृद्ध विरासत खादी शॉल माननीय उपराष्ट्रपति जी को भेंट की जा रही है। और अब माननीय उपराष्ट्रपति जी को भेंट किया जा रहा है एक पौधा। आतिथ्य परंपरा के अगले चरण के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द खादी इंस्टीट्यूशंस श्री गुंटुको कामेश्वर प्रसाद एंड श्री पम्मीना सत्यनारायण। आप कृपया मंच पर आएं क्योंकि अब माननीय उपराष्ट्रपति जी को एक बहुत ही विशेष तोहफा दिया जा रहा है और ये है पोंडोरो खादी अंगवस्त्र। माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कृपया हमारी समृद्ध विरासत के इस उदाहरण को भी दें। और माननीय उपराष्ट्रपति जी आपको बताना चाहेंगे कि इस कोंडूरू सिल्क को प्रेस्टिजियस जीआई टैग भी मिल चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। और गुंटुकू प्रसाद जी को और पम्मीना सत्यनारायण जी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। और यहाँ पर माननीय उपराष्ट्रपति जी के सम्मान की प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई है क्योंकि अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया माननीय उपराष्ट्रपति जी को कॉयर बोट की ओर से निर्मित नारियल के रेशों से निर्मित आपका पोर्ट्रेट, माननीय उपराष्ट्रपति जी का पोर्ट्रेट भेंट किया जाए। कॉयर बोट का विशेष तोहफा, विशेष भेंट है ये माननीय उपराष्ट्रपति जी के लिए। इस खूबसूरत कलाकृति के लिए जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं सचिव एमएसएमई श्री मनोज गोयल जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया केंद्रीय मंत्री जी का भी स्वागत करें। मैं सचिव भरत खेरा जी से अनुरोध करती हूं कृपया केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का भी स्वागत करें, अभिनंदन करें और उनको शॉल भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। और शॉल के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जी को भेंट किया जा रहा है एक पौधा भी। सचिव महोदय से सादर अनुरोध कृपया सूक्ष्म लघु एवं उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करदलांजे जी को भी खादी शॉल भेंट करें। खादी शॉल के साथ माननीय राज्य मंत्री जी को एक पौधा भी भेंट किया जाएगा। A potted plant being presented as a mark of respect. और माननीय सचिव महोदय से अनुरोध कृपया अध्यक्ष खादी और ग्रामोद्योग आयोग श्री मनोज गोयल जी का भी स्वागत करें। आपको भी खादी शॉल भेंट की जा रही है और खादी शॉल के साथ आपको पॉटेड प्लांट भी दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव महोदय श्री भरत खेरा जी। देवी और सज्जनों, कारखानों में गूंजती मशीनों से लेकर करघों की मधुर थाप तक, प्रयोगशालाओं में जन्म लेते नवाचारों से लेकर गांवों में सृजित हस्तशिल्प तक, एमएसएमई क्षेत्र का प्रत्येक कर्मवीर केवल उत्पाद नहीं बनाता, वे राष्ट्र के भविष्य को भी आकार देता है। एमएसएमई मंत्रालय आपके प्रयासों को संबल देते हुए देश भर में कैसे उद्यमिता, नवाचार और लोकल टू ग्लोबल की यात्रा को सशक्त बना रहा है, इसी पर प्रस्तुत है ये लघु फिल्म। भारत के प्रगामी विकास की कहानी देश के हर कोने में लिखी जा रही है और इस कहानी का नेतृत्व कर रहा है एमएसएमई क्षेत्र। आज एमएसएमई भारत की जीडीपी में 31% से अधिक तथा विनिर्माण क्षेत्र में 35% से अधिक की हिस्सेदारी के साथ साथ देश के लगभग 48% से अधिक निर्यात को गति प्रदान कर रहे हैं। ये केवल आंकड़े नहीं बल्कि करोड़ों सपनों, नवाचार और आत्मनिर्भरता की कहानी है। आज उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से करोड़ों उद्यम औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़ रहे हैं। यह एक सरल, निःशुल्क और डिजिटल व्यवस्था है जो छोटे उद्यमों को पहचान, वित्तीय पहुंच और मार्केट लिंकेज के अवसर प्रदान कर रही है। भारत के एमएसएमई
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि ग्लोबल सप्लाई और वैल्यू चेन को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। वित्तीय सशक्तिकरण के लिए CGTMSE योजना के माध्यम से बिना गारंटी लोन सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड इक्विटी निवेश के माध्यम से उभरते MSME को और सशक्त बना रहा है। देश भर में स्थापित टेक्नोलॉजी सेंटर्स के माध्यम से MSME को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और आधुनिक तकनीकों तक पहुंच मिल रही है। MSME चैंपियन स्कीम के माध्यम से उद्यमों को प्रतिस्पर्धी, नवाचार उन्मुख तथा भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाया जा रहा है। जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट और MSME कॉम्पिटिटिव लीन योजनाएं MSME को बेहतर गुणवत्ता, ऊर्जा दक्षता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रही हैं। साथ ही इनोवेटिव योजना के तहत नवाचार और IPR को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम और टीम प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय MSME स्थानीय सीमाओं को पार कर वैश्विक बाजारों से जुड़ रही है और अपना वर्चस्व फैला रही है। ट्रेड्स इकोसिस्टम के माध्यम से MSME अपने इनवॉइस अपलोड कर बैंकों और वित्तीय संस्थानों से तुरंत धन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उन्हें समय पर कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो रही है। रैम प्रोग्राम केंद्र और राज्यों की साझेदारी को मजबूत कर रहा है। MSME ऑनलाइन विवाद समाधान ODR पोर्टल समय पर भुगतान और बेहतर व्यावसायिक संबंध सुनिश्चित कर रहे हैं। PM विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 प्रकार के कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक टूल किट उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही पैकेजिंग प्रशिक्षण और बाजार तक पहुंच को भी सरल बनाया जा रहा है। नेशनल SC/ST हब के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को प्रशिक्षण, विपणन सहयोग और सरकारी खरीद में सहभागिता के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। क्लस्टर विकास कार्यक्रम, साझा सुविधाओं, आधुनिक अवसंरचना और तकनीकी सहयोग के माध्यम से MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता एवं विकास को नई गति प्रदान कर रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहा है। NSIC उद्यमों को कच्चे माल की उपलब्धता, विपणन संबंधी सहायता और व्यावसायिक सहयोग प्रदान कर उनके विकास को नई गति दे रहा है। M-गिरी परंपरागत उद्योगों को आधुनिक तकनीक और बाजार से जोड़कर ग्रामीण उद्यमिता को नई पहचान दे रहा है। वहीं कोयर बोर्ड पर्यावरण अनुकूल कोयर उत्पादों को वैश्विक बाजारों से जोड़ रहा है। नवाचार, प्रौद्योगिकी, स्थिरता और आत्मनिर्भरता के मजबूत स्तंभों पर खड़ा MSME क्षेत्र विकसित भारत की आर्थिक प्रगति का सशक्त इंजन है। आप भी उद्यम पंजीकरण कर इन योजनाओं का लाभ लें और विकसित भारत की यात्रा के सहभागी बने। अब हर MSME बनेगी अग्रणी, आधुनिक और आत्मनिर्भर। आइए करतल ध्वनि के साथ MSME क्षेत्र के लिए किए जा रहे इन प्रयासों को संबल दें। Ladies and gentlemen, National Small Industries Corporation Limited (NSIC) is a mini Ratna Government of India enterprise established in 1955 under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. इसके 71 वर्षों के इतिहास में पहली बार इस वर्ष की शुरुआत में NSIC का दर्जा अनुसूची B से बढ़ाकर अनुसूची A श्रेणी के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम में कर दिया गया है। शेड्यूल A का दर्जा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों की सर्वोच्च श्रेणियों में से एक माना जाता है। यह MSME सेक्टर में NSIC के बढ़ते योगदान और उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है, जिसके लिए तालियां तो बनती हैं। I now invite on stage CMD NSIC श्री शुभ्रांशु शेखर आचार्य, और अब इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं
एनएसआईसी के वरिष्ठतम कर्मी श्री जे.एस. जुनेजा जी को मैं श्री आचार्य जी से अनुरोध करूंगी, कृपया श्री जुनेजा जी के साथ मंच पर आगमन करें। आप पूर्व सीएमडी भी रह चुके हैं और ये कह सकते हैं कि आपने जो बीज रोपा आज वो वट वृक्ष बन चुका है। आप वे कर्मयोगी हैं जिन्होंने एनएसआईसी को नन्हे कदमों से आगे बढ़ते, संघर्षों को पार करते, सफलता के शिखर तक पहुंचते अपनी आंखों से देखा है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया श्री जे.एस. जुनेजा जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करें। देवियों सज्जनों, जुनेजा जी इस संस्थान की स्मृतियों, संघर्षों, सफलताओं के अमूल्य साक्षी रहे हैं। एनएसआईसी के पूर्व सीएमडी श्री जुनेजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी, और बहुत बहुत धन्यवाद जुनेजा जी, आज वक्त निकाल कर आप हमारे बीच आए। एनएसआईसी के लिए गौरवशाली क्षण है कि शेड्यूल ए में उनका नाम सम्मिलित किया गया है, जिसका मतलब है कि अधिक ताकत होगी अब एनएसआईसी के पास एमएसएमई के क्षेत्र में बेहतर काम करने की। और जुनेजा जी वरिष्ठतम कर्मी रहे हैं एनएसआईसी के, इसलिए आज उन्हें भी हम सब मिलकर नमन कर रहे हैं। Ladies and gentlemen, digital transformation is redefining the MSME landscape in the country. आज MSME मंत्रालय अधिक नागरिक केंद्रित हो गया है। अनेक डिजिटल पहलों के माध्यम से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपेरेंसी और फास्टर सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित की जा रही है। बहुत से पोर्टल्स हैं जो नवीनीकृत किए जा रहे हैं। इनका डिजिटलाइजेशन एमएसएमईज को प्रतिस्पर्धी, आत्मनिर्भर और वैश्विक बाजार के लिए अधिक सक्षम बनाने में भी महत्वपूर्ण है। And today marks the launch of 5 new digital portals designed to transform the MSME ecosystem with one vision: enhance ease of doing business for them. We present before you a short film to explore their significance and the impact that they create. नया भारत, जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उन्हें साकार भी किया जाता है। यहां करोड़ों एमएसएमई उद्यमी अपनी मेहनत, नवाचार और संकल्प से देश की प्रगति की नई कहानी लिख रहे हैं। नागरिक केंद्रित सेवाओं और डिजिटलीकरण के माध्यम से हर उद्यमी तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, यही है इस नए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए आज राष्ट्र को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से समर्पित किए जा रहे हैं 5 नए डिजिटल पोर्टल। पीएमईजीपी पोर्टल 2.0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक प्रमुख योजना का डिजिटल स्वरूप है, जिसका कार्यान्वयन केवीआईसी द्वारा किया जाता है। ये एक समग्र डिजिटल मंच है जो सभी प्रमुख हितधारकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ता है। बैंकों के साथ रियल टाइम डेटा आदान प्रदान, सीएससी के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एसएमएस अलर्ट, भाषणी द्वारा बहुभाषी सुविधा, डिजिटल डीपीआर, उद्यम इंटीग्रेशन और समर्पित मोबाइल ऐप से युक्त ये पोर्टल एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने हेतु पारदर्शी, प्रभावी और सुगम लास्ट माइल सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। एमएसएमई समाधान पोर्टल 2.0 एक ऐसा डिजिटल मंच जो केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और 291 सरकारी उपक्रमों को एमएसएमई के लंबित भुगतानों की हर महीने रिपोर्ट देने के लिए सक्षम बनाता है। एक ऐसा केंद्रीकृत डैशबोर्ड जहां सभी बकाये की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो, और साथ ही स्वचालित अलर्ट जो समय पर कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित करे, ताकि हर एमएसएमई को उसका हक समय पर मिले। पीएमएस पोर्टल जो सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों से जोड़ने का एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करता है। उद्यम रजिस्ट्रेशन से जुड़ा ये पोर्टल आवेदन, भागीदारी और प्रतिपूर्ति दावे जैसी पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन, पेपरलेस और पारदर्शी बनाता है। इससे उद्यमियों के लिए नए बाजारों तक पहुंचना आसान होगा और व्यापार के अवसर बढ़ेंगे। एमएसएमई ग्लोबल मार्ट पोर्टल 2.0 ओएनडीसी इकोसिस्टम से जुड़ा एक अत्याधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है,
जो एमएसएमईज को B2B और B2C व्यापार के नए अवसर प्रदान करेगा। ये पोर्टल SC/ST और महिला उद्यमियों को पारदर्शी खरीद व्यवस्था से जुड़ने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने का अवसर देगा। साथ ही ODOP और GI टैग प्राप्त उत्पादों को मिलेंगे राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार तक पहुंचने के अवसर, ताकि भारत की MSME दुनिया में अपनी पहचान बना सके। MSME टेस्टिंग पोर्टल, जो देश भर के MSME परीक्षण केंद्रों और परीक्षण स्टेशनों को एकीकृत डिजिटल मंच पर जोड़ता है। इस पोर्टल के माध्यम से उद्यमी अब घर बैठे सैंपल बुकिंग, ऑनलाइन भुगतान, टेस्टिंग स्टेटस ट्रैकिंग और टेस्ट रिपोर्ट डाउनलोड जैसी सुविधाओं का लाभ एक ही मंच पर प्राप्त कर सकेंगे। BISAG-N और NIC के सहयोग से विकसित ये पोर्टल MSME क्षेत्र में डिजिटल सुगमता और गुणवत्ता आश्वासन को नई गति प्रदान करेगा। ये 5 नए डिजिटल प्लेटफॉर्म करोड़ों उद्यमियों को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक सशक्त कदम है, क्योंकि सशक्त MSME ही समृद्ध भारत की नींव है। MSMEs को अधिक सशक्त, प्रतिस्पर्धी और वैश्विक स्तर पर सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है ये पोर्टल्स। एंड नाउ वी प्रोसीड विद द लॉन्च ऑफ ईच ऑफ द 5 portals one by one. May I please request Honorable Vice President Shri C.P. Radhakrishnan to first launch Prime Minister's Employment Generation Program Scheme PMEGP 2.0 portal. ये पोर्टल सभी हितधारकों को PMEGP के हितधारकों को एक ही मंच पर जोड़ता है। I respectfully request Honorable Vice President to launch Samadhan 2.0 portal. Have the honor of inviting Honorable Vice President to inaugurate PMS portal, Procurement and Marketing Support portal. I now request Honorable Vice President to formally launch MSME Global Mart 2.0 portal, जो पहले B2B था, अब B2C है। May I now respectfully request Honorable Vice President to launch Testing Center portal. कुछ और महत्वपूर्ण लॉन्चेस भी अभी किए जा रहे हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण पहल है MSME वेबसाइट और पोर्टल्स का बहुभाषी होना। I now humbly request Honorable Vice President to launch the multilingual access on MSME portals. Innovation is cornerstone of India's growth story. मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से आदरपूर्वक विनती करती हूं कि कृपया MSME आइडिया हैकाथॉन 6.0 का शुभारंभ करें। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी आधारित सॉल्यूशंस डेवलप करने के लिए यंग इनोवेटर्स को आमंत्रित किया जा रहा है। Now the portal is open for submission of innovative ideas by young minds of India. आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उद्यमों के विकास, रोजगार सृजन, नवाचार, महिला उद्यमिता में सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के योगदान को रेखांकित करते हुए आज इसी फंड पर ई बुक लॉन्च की जा रही है। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से गुजारिश करती हूं, कृपया सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड पर ई कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें।
माननीय उपराष्ट्रपति जी से सादर निवेदन करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर पीएम विश्वकर्मा योजना पर भी ई कॉफी टेबल बुक जारी करें। पीएम विश्वकर्मा योजना के 3 वर्ष पूरे के उपलक्ष्य में ही कारीगरों की प्रेरणादायक सफलता की कहानियां इस ई कॉफी टेबल बुक में प्रदर्शित की गई हैं। और अब एक और महत्वपूर्ण लॉन्च। माननीय, समय के साथ खादी भी बदल रही है, अपनी आत्मा को संजोए नए स्वरूप में आगे बढ़ रही है। इस अवसर पर मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से सादर निवेदन करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर खादी और ग्राम उद्योग आयोग के नए उत्पाद लॉन्च करें। रंगकार, टेबल रनर्स एंड मैट्स, वानियार, एरिसन से बने स्टोल्स, उमंग, खादी मरीनो वूल शॉल और स्टोल कलेक्शन, अत्यंत विशेष खादी उत्पाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। नई सोच, नई डिजाइन, नई पहचान के साथ विकसित ये उत्पाद वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल के मंत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगे। मान्यवर, नन्हे नन्हे बीज ही तो बनते हैं वटवृक्ष महान। छोटे छोटे उद्योगों से ऊंचा होता राष्ट्र का मान। हर उद्यम में एक सपना है, हर सपने में हिंदुस्तान। एमएसएमई की शक्ति से ही साकार हो विकसित भारत का अभियान। अब मैं केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री आदरणीय सुश्री शोभा करदलांजे जी से आदरपूर्वक अनुरोध करती हूं कि इस अवसर पर अपने प्रेरक विचार हमारे साथ साझा करें। माननीय उपराष्ट्रपति जी, हमारे कैबिनेट मंत्री जितिन राम मांझी जी, केवीआईसी के चेयरमैन मनोज कुमार जी, हमारे सेक्रेटरी भरत केरा जी, माय डियर ऑफिशियल्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग राज्य से जगह से आए हुए एंटरप्रेन्योर्स, MSME associations, विश्वकर्मीज एंड मीडिया फ्रेंड्स, आप सबको MSME डे का शुभकामनाएं देती हूं मैंने, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं MSME हमारे देश का ग्रोथ का इंजन है, एंड ये इंजन को चलाने वाले आप जैसे लोग इधर बैठे हैं, एंटरप्रेन्योर्स। अभी ग्रोथ इंजन का सब बधाई आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप अचीवमेंट कर रहे हैं। MSME केवल कितना था देश में किसी को पता नहीं था, मगर प्रधानमंत्री जी ने सोचा ये MSME को फॉर्मलाइजेशन करना चाहिए, हमको नंबर पता होना चाहिए। पहली बार हमारे डिपार्टमेंट उद्यम पोर्टल, उद्यम असिस्ट पोर्टल खोला, उसी में आप सब लोग जुड़े। अभी 8.7 करोड़ उद्यमियों उद्यम पोर्टल में जुड़े हैं, इसके लिए आपको मैंने बधाई देती हूं। हमारे देश में अभी भी कृषि बहुत बड़ा क्षेत्र है, उद्योग देने वाले क्षेत्र में, मगर आप उद्यम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करते करते आपने बताया
आप सब मिलके 38 करोड़ लोगों को उद्योग देते हैं एंड आपका इंडस्ट्री में काम करते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य फॉर्मलाइजेशन के साथ साथ सबको ESIC और EPFO मिलना चाहिए। ये फॉर्मलाइजेशन होता है। इसीलिए आप सब इसी में जुड़े हैं। इतना बड़ा नंबर को एम्प्लॉयमेंट दिया। अभी अभी प्रधानमंत्री जी विज्ञान भवन में एक नया कार्यक्रम को उद्घाटन किया, वो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। इसी में नया एम्प्लॉयमेंट किसको मिला है, उसको हर साल 15,000 देने का एंड एम्प्लॉयर को 3,000 देने का एक कार्यक्रम। पिछले 1 साल में आप सब लोग मिलके 20 लाख लोगों को, नया बच्चे को उद्योग दिया एंड 2,400 करोड़ आपका अकाउंट में एंड बच्चे के अकाउंट में प्रधानमंत्री जी ने डाला। ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम है। ऐसे हम हर जगह में जाते हैं तब एंटरप्रेन्योर्स का एक ही मांग है, हमको बैंक से जुड़ाना चाहिए। लेबरर्स मिलते हैं बट स्किलिंग होना चाहिए एंड हमें इंटरनेशनल मार्केट पहुंचना चाहिए। हम गर्व से कहते हैं हमारे MSMEs, दे आर दी बिग सप्लायर्स फॉर HAL, BEL एंड डिफेंस सिस्टम। आप सब मिलके एक किया है। अभी आने वाले दिन का वर्ल्ड का मार्केट है वो AI, रोबोटिक्स एंड डिफेंस फील्ड एंड ऑटोमेशन। हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे MSMEs वर्ल्ड मार्केट को पहुंचना चाहिए। ऐसा करने के लिए हम आपको बैंक से जुड़ाने का काम करते हैं। अभी केरा जी बताया 238% बैंक में लोन देने को हम बढ़ाया है। लाइक पहले 10 साल पहले वो 14 लाख करोड़ था, अभी 37 लाख करोड़ लोन आपको दिलाया है। हम अलग अलग बैंक से हमारे एंटरप्रेन्योर्स लिया है। उतना काम अभी बढ़ रहा है मार्केट में एंड स्किलिंग बढ़ाने का, अपस्किलिंग करने का, रीस्किलिंग करने का काम भी भारत सरकार सोचा है। अलग से हम स्किल डेवलपमेंट का मिनिस्ट्री भी बनाए हैं एंड अलग अलग डिपार्टमेंट में भी स्किलिंग करने का काम अभी चल रही है। हमारा लक्ष्य है वर्ल्ड मार्केट। एंटरप्रेन्योर का लक्ष्य क्या है? वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट में क्या है, हम अलग अलग इंटरनेशनल फोरम में जाते हैं। अभी मैं भी जिनेवा गई थी। 40 कंट्री हमको मांग रखे, हमको डिजिटल टेक्नोलॉजी चाहिए, आपका देश हमको ट्रेनिंग देना चाहिए एंड फैसिलिटी करना चाहिए। एंड भारत का अभी उपराष्ट्रपति जी अलग अलग पोर्टल लॉन्च किया। ऐसे पोर्टल को हमारे देश में करने के लिए आप मदद दीजिए। ऐसे अलग अलग देश में हमको मांग रखते हैं। हमारा एंटरप्रेन्योर्स का बहुत बड़ा दायित्व है आने वाले का दिन का टेक्नोलॉजी को वो कहते हैं। भारत का विकास में हमारे MSMEs हमारे साथी है। यू आर द पार्टनर्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। दैट्स वाई आप सबको मैं विनती करती हूँ MSME डे में, क्योंकि हमारा भुवनेश्वर का टूल रूम चंद्रयान तक मटेरियल देने को हम मदद किया। ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे साथ है, हमारे पास है, हम कर सकते हैं। पूरा विश्व को क्या वो मांगते हैं, इनोवेशन हो, प्रोडक्शन हो, मार्केट करने के लिए हम कर सकते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी भारत में है, ऐसा मेहनत करने वाले एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथी आप हैं। इसीलिए जरूर आने वाले दिन में वर्ल्ड मार्केट में क्या चाहते हैं उसको देने के लिए हम जरूर आगे बढ़ेंगे। आपको क्या मदद चाहिए वो देने के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
माननीय मांझी सर का नेतृत्व में हम तैयार है, जरूर आगे बढ़ेंगे। मुझे बहुत हर्ष हो रहे हैं क्योंकि हमारे उपराष्ट्रपति जी केवल क्वायर बोर्ड का चेयरमैन नहीं थे, वो एक एंटरप्रेन्योर भी थे, इसीलिए उसका सब पता है एमएसएमई क्या है, एमएसएमई का कष्ट क्या है, एमएसएमई का उपलब्धि क्या है, सब माननीय उपराष्ट्रपति जी जानते हैं क्योंकि वो खुद क्वायर में बहुत इंटरेस्ट लिया। इसके कारण 2020 में क्वायर बोर्ड में हम एक्सपोर्ट करने तक, हमारा क्वायर बाहर देश को जाने तक वो कष्ट उठा के बहुत मेहनत करके हमारा क्वायर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का काम उपराष्ट्रपति जी ने किया है। इसके कारण आप सबको मैंने फिर से एक बार बधाई देती हूँ। हम आगे बढ़ेंगे। आप आगे बढ़ने के लिए हम आपको क्या चाहिए, स्किलिंग हो, टेक्नोलॉजी हो, मार्केटिंग का व्यवस्था हो, मार्केटिंग से जुड़ाने का काम हो, जरूर भारत सरकार आपके साथ जुड़ेंगे। ऐसे बोल के आप सबको फिर से एक बार मैंने बधाई देती हूँ। एंड आज नया पोर्टल खुले है हमारा, पोर्टल पहले भी था बट उसको आने वाले दिन का, फीचर दिन का पोर्टल बनाने के लिए हमारा डिपार्टमेंट सोच के आप माननीय उपराष्ट्रपति जी अभी लॉन्च किया है, जरूर उसका फायदा उठाइए। एंड आने वाले दिन में हम साथ बढ़ेंगे। 2047 में भारत का विकसित भारत होने में आपका बहुत बड़ा दायित्व है। आप जॉब देने से हम हमारा एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को हम बढ़ा सकते हैं, हमारा बच्चे को हम काम दे सकते हैं। वो शक्ति आपके पास है, जरूर हम साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी एमएसएमई डे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एमएसएमई राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे जी। देवी और सज्जनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में एमएसएमई क्षेत्र अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और आज के इस अवसर पर मैं केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी से सविनय निवेदन करती हूँ, कृपया अपने शब्दों के द्वारा हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। स्वागत करें माननीय केंद्रीय मंत्री का। सबसे पहले आज एमएसएमई दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी तबके के साथियों, विद्वानों और उद्यमियों को एमएसएमई डे का शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज एमएसएमई डे पर जो डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में कार्यक्रम चल रहा है, बहुत कृपा की है और एक ऐसे महानुभाव और विद्वान उपराष्ट्रपति महोदय जी जो हमारे छोटे से आग्रह को मानते हुए आज यहाँ उपस्थित हो गए। और मैं समझता हूँ इनके उपस्थिति मात्र से ही हमारे एमएसएमई में लगे सभी साथियों को, सभी लोगों को बहुत प्रेरणा मिलेगी। इसलिए कि इनको मैं मानता हूँ कि एमएसएमई का एक प्रतिरूप हैं और उपस्थित हैं श्री सीपी राधाकृष्णन जी, माननीय उपराष्ट्रपति महोदय जी। सुश्री शोभा करंदलाजे जी, जिनकी बातें आपने सुनी, जो हमारे राज्य मंत्री हैं दो विभाग के, श्रम विभाग और हमारे एमएसएमई के। मनोज कुमार जी यहाँ पर हैं, अध्यक्ष हैं केवीआईसी के। और भारत खेड़ा जी हैं सचिव एमएसएमई के। और एमएसएमई के सभी अधिकारीगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ। सभी उद्यमीगण हैं, प्रेस मीडिया के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, सबको पुनः पुनः हम एमएसएमई डे का शुभकामना देते हैं। भाइयों बहनों, बहुत सारी बातें हमारे सचिव के द्वारा और लघु फिल्म के माध्यम से आप लोगों ने देखने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद एमएसएमई के बारे में जो डाटा है और क्या क्या हम कर रहे हैं समझाने की ज़रूरत नहीं है।
आप खुद समझदार हैं। हम कुछ ऐसी बातों की चर्चा करेंगे जिन बातों को लेकर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बहुत चिंतित हैं और चाहते हैं कि आज भारत को विश्व के चौथा आर्थिक व्यवस्था में लाने में कामयाब हुए हैं जापान को पछाड़ करके, और वो चाहते हैं, उनका कल्पना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत के रूप में संसार का पहला आर्थिक व्यवस्था के रूप में बनाएं, ये उनका स्वप्न है। और वो स्वप्न कैसे पूरा होगा इसके लिए भी बहुत सचेष्ट है। सारी बातों की चर्चा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन हम एमएसएमई के क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी का योगदान रहा है, प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं, उसके बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त बताना चाहेंगे। आपने देखा होगा शायद जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं, और क्यों न हो। जब 2014 में उन्होंने भारतवर्ष के प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में पद संभाला, तो उन्होंने कहा था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को हम नियोजन या नौकरी देंगे। ये सब लोगों को आज तक एक अनबुझ कहानी दिखती है कि क्या बोल गए हैं। विरोधी दल तो बहुत तरह की बात बोलते हैं कि क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, अन्य विभाग की बात नहीं कहता, हम अपने विभाग की बात करते हैं। जो अभी आपने सुना कि आज एमएसएमई की जो इकाइयाँ हैं वो लगभग 8 करोड़ से ऊपर की बात जिसकी बात कही गई, और अगर एक इकाई में 5 आदमी भी अगर इंगेज होते हैं तो 8-5-40 करोड़ की बात होती है। और वही डाटा में बताया गया है कि 38 करोड़ लोगों को हम लोगों ने एमएसएमई के माध्यम से नियोजन दिया। ये स्पष्ट है और इसमें कोई कसर नहीं है। और मैं कह सकता हूँ कि एक विभाग जो हमारा एमएसएमई का है, वही जब 38 करोड़ को नियोजन दे सकता है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था 14 से लेकर आज तक 12 बरस, तो 12 दूनी 24 करोड़ होना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ हमारा एमएसएमई है जो 38 करोड़ लोगों को नियोजन दे रखा है। तो ये प्रधानमंत्री की विशेषता, प्रधानमंत्री जी का चिंता है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, दूसरी बात जो प्रायः अपने बातों में मैं कहता हूँ, हो सकता है पुनरावृत्ति नज़र आती हो, कि भारत की जो स्थिति अभी है, अगर 2000 वर्ष पीछे हम लोग चल करके देखते हैं कि भारतवर्ष कैसा था, तो उस समय कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया माना जाता था, विकसित राष्ट्र के रूप में था। उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े वो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हुए कारखाना नहीं थे। बावजूद उसके हम विकसित थे, हम स्वस्थ थे, हर तरह से हमारी लॉन्गेविटी ज़्यादा थी। आज क्या है, आज जनसंख्या बढ़ी है, ठीक है हम कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आज हमारे सामने? आज हमारे सामने 2 प्रॉब्लम बहुत कस करके हम लोगों को सता रही है, और वो है एक पोल्यूशन का और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट का। ये 2 प्रॉब्लम आज सिर्फ भारत को नहीं, समूचे यूनिवर्स को ये सता रही है। और ये दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक ही तरीका है, और वो है एमएसएमई। एमएसएमई के माध्यम से ही हम पोल्यूशन को भी दूर कर सकते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की बात भी हम कर सकते हैं। जैसे आपको बताना चाहते हैं कि वाटर सिस्टम के माध्यम से हमारे पूर्वज लोग वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। एक वस्तु बनाते थे, कोई दूसरा वस्तु, कोई तीसरा, कोई चौथा, और आपस में आदान प्रदान करके सब ठीक रहते थे, आपस में कोऑर्डिनेशन होता था। इस तरह से आज जो हमारे सामने
बहुत तरह की बातें आ गई है समाज में। इसका यही कारण है कि हम सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेटिस्ट हो रहे हैं, हमको दूसरे से लगाव नहीं हो रहा है, ऐसा सोच करके हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उस समय यही था कि हमको एक दूसरे से लगाव था। हमारे वस्त्र बनाने वाले भाई हमारे लोहा बनाने वाले भाई से अवलंबित होते थे, ये दोनों भाई हमारे जूता बनाने वाले भाई से अवलंबित रहते थे, ये तीनों भाई हमारे हेयर कटिंग और शेविंग भाई से जुटे रहते थे। ये सारा काम ऐसा होता था कि एक दूसरे को वस्तुओं का आदान प्रदान कर कर के खुश रहते थे और बिना पॉल्यूशन के सब लोग इम्प्लाइड होते थे। और यही कारण था कि भारत सबसे आगे था। आज भारत आगे बढ़ने में ये सबसे बड़ी दिक्कत हमारे सामने है पॉल्यूशन का और अनएम्प्लॉयमेंट का। इस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा, समझा और यही कारण है कि उन्होंने एमएसएमई विभाग को आगे बढ़ाने के लिए आज उद्यत हैं। और ठीक ही कहा गया कि एमएसएमई है हमारे आर्थिक जगत का रीढ़ है। क्या उसका हमारा योगदान है? अभी कहा गया कि क्या हम जीडीपी में करते हैं, क्या हम मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, क्या हम ट्रांसपोर्ट में करते हैं, ये सारी बातें कही गई। इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब आप जान रहे हैं कि इसका मतलब यही होता है कि हमारा एमएसएमई ही ऐसा एक विभाग है जिससे कि हम हर तरह के प्रॉब्लम से हम इंडिया को उबार सकते हैं। और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एमएसएमई को जो दूसरे विभाग से अटैच था उसको डिटैच करके सेपरेट विभाग दिया है। और उसमें जब कभी भी बजट की ज़रूरत होती है, यहाँ बजट के लिए कोई कमी नहीं होती है। जब हम लोग मांगते हैं वो बजट देते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि प्रधानमंत्री जी उस डॉक्टर के रूप में, उस चिकित्सक के रूप में एक रोगी के नब्ज को पहचाना है, डायग्नोसिस किया है कि इंडिया के विकास के लिए क्या ज़रूरत है। और उसी डायग्नोसिस में आता है कि हम एमएसएमई को बढ़ाएंगे, तभी एक तरह से आज संसार में सबसे ज़्यादा इंडिया में यूथ हैं। और यूथ हैं तो 62% एंड एबव यहाँ के लोग यूथ हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। तो कहा जाता है कि भूक्षम किम न करोति पाप, जो हमारे भूखे होते हैं या खाली पेट शैतान का माना जाता है। तो यही कारण है कि आज समाज में अनेक प्रकार की बातें भी हो रही है। इस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री जी ने समझने का काम किया और इसीलिए एमएसएमई को बढ़ावा दे रहे हैं। और हमको बहुत खुशी है और संतुष्ट हैं, जैसा कि आप लोगों ने लघु फिल्म में देखा कि हम कहाँ आगे बढ़ रहे हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं। और हर तरह से एमएसएमई को आगे ले चल करके हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में 2047 में बनाने के लिए हम चल पड़े हैं। और प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो हमारा कहना यही है। और उसमें बहुत से हमारे अंग हैं, जैसे अभी क्वायर बोर्ड की बात कही गई। बहुत से लोग खास करके नॉर्थ इंडिया में क्वायर की बात लोग नहीं जानते हैं। हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में क्वायर बोर्ड के बारे में, उसके कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ावेंगे। तो उससे, क्योंकि उससे एक्सपोर्ट की इतनी संभावना है, हम जितना भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें क्वायर बोर्ड की बहुत ही भूमिका है। इसलिए क्वायर बोर्ड को भी आगे बढ़ा करके ले चलने के लिए हम लोग उद्यत हैं। और आज एमएसएमई के डे पर हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि क्वायर बोर्ड को, क्वायर के जो कार्यक्रम है उसको समस्त भारत के कोने कोने में ले जाएंगे ताकि हमको उससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। और फिर उसके बाद हमारे यहाँ खादी ग्राम उद्योग भी है, KVIC जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अभी बताया गया होगा आप लोगों को कि साहब यहाँ पर लगभग 172-74 करोड़ या 80 करोड़ के आसपास में हम लोगों ने सेल्स दिया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। और आगे भी इसकी इकाइयाँ हम लोग खोल करके बढ़ा रहे हैं। हम आज से 10-20 वर्ष 25 वर्ष पहले गांव-गांव में खादी ग्राम उद्योग की बात होती थी। खादी के चीज़ लोग पहनते थे। स्वतंत्रता संग्राम में हम लोगों ने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है वो इंडिया मेक के सामानों का ही प्रयोग करके और खादी को ही आगे बढ़ा करके हम लोगों ने किया है। तो इसलिए उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, वहाँ भी हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि समाज में कुछ जो पीछे पड़े हुए लोग हैं
उसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग होते हैं। हमारे विभाग में, हमारे एमएसएमई में उसके लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स हैं, काम कर रहे हैं। मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या थोड़ी कम है, बावजूद उसका काम हो रहा है। जैसे अभी हाल में हम हल्द्वानी में गए थे और वहाँ एक आदमी मेरठ से आए, उन्होंने कहा कि हम 4 राज्य के एमएसएमई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हब्स के हम प्रबंधक हैं। हमको आश्चर्य हुआ कि शेड्यूल कास्ट जो आज आबादी के दृष्टिकोण से हम लोग 20-22% के आसपास में हैं, 24% तक के भी शेड्यूल ट्राइब्स में ला के रहते हैं, और उनके लिए उनकी संख्या कोई कम हो। आज एमएसएमई के डे पर हम आप लोगों के सामने संकल्प लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग बहुत कोशिश करेंगे, और जो हमारा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे कि हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के भाई बहन को नियोजन मिले, प्रशिक्षण लें और फिर हमारे एमएसएमई में वो भाग लें और हमारे एमएसएमई को बढ़ावें। ऐसे कहने को तो बहुत, अभी हाल में जब हम फिर खादी पर आते हैं, अभी हाल में हम बिहार से आते हैं। बिहार में खादी ने बहुत अच्छा उत्कृष्ट काम किया है। वो बिहार में 52 बूटी शिल्प का जो प्राचीन अतिरिक्त बाना है, जिसको एक्स्ट्रा वेफ्ट कहते हैं, उसकी बुनाई कला का उत्सव मनाते हुए 6 विशिष्ट साड़ियों का समकालीन खादी परिधानों का एक विशेष संग्रह नालंदा खादी ग्राम उद्योग विकास संघ के सहयोग से विकसित किया गया है। इस संग्रह में बिहार के 52 बूटी कला के साथ साथ लेसर तसर रेशमी की बुनाई को भी समाहित किया गया है। इस डिजाइन का ध्रुव तारा, सप्तऋषि, नक्षत्र, नवग्रह, सूर्य और चंद्र और ब्रह्मांडलीय प्रतीक को कलात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। हमारा खादी ये है, खादी में एक से एक कलात्मक बातें हो रही है। उसका भी प्रचार प्रसार में हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं, मदद करते हैं, और ले दे करके आप लोगों का भी सहयोग हम लोग चाहते हैं कि इसको ईमानदारी से, इसको अपना रोज़गार तो है ही है, रोज़गार के साथ साथ समाज को रोज़गार मिले, पर्यावरण हमारा ठीक रहे, हम कैसे स्वच्छ रह सकते हैं, कैसे स्वच्छ हवा हमको मिले और हमारा वातावरण ठीक हो करके हम भारत को आगे बढ़ावें, ये भी चिंता हमारा एमएसएमई का है। तो हमारा एमएसएमई एक रोज़गार नहीं है, सिर्फ किसी को रोज़गार देने का मामला नहीं है, ये बहुत पीछे, इसके पीछे बहुत बड़ा महत्व है, इसका प्राचीन महत्व है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि अगर एमएसएमई को आगे हम बढ़ाते हैं तो जैसे हमारे में आता है, तो इसलिए एमएसएमई हम समझते हैं कि सभी क्रियाकलापों का जनक है। एमएसएमई के माध्यम से ही हम भारत को आगे बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, और इस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री ने समझने का काम किया है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए पुनः आप सबों को इस एमएसएमई डे की शुभकामना देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय केंद्रीय मंत्री जी। Ladies and gentlemen, it is our privilege to be in the gracious presence of the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, whose distinguished public service and steadfast commitment to constitutional values continue to inspire the nation. A distinguished statesman, an eminent parliamentarian, and an inspiring public leader, the Honorable Vice President of India has consistently emphasized the importance of entrepreneurship, innovation, and inclusive growth in building a developed India. It is my proud privilege to invite the Honorable Vice President of India, Shri C.P. Radhakrishnan, to address this august gathering. Please welcome Honorable Vice President of India. मैं भारत माता के पवित्र चरणों को स्पर्श करता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ। Today, on the occasion of the International MSME Day,
the esteemed dignitaries who are sharing the dais with me, our Honorable Union Minister for MSME and former Chief Minister of Bihar State, Sriman Sitindram Manjiji, Honorable Union Minister of State for MSME, Susri Sobha Karant Lajeji, Chairman of KVIC, Sriman Manoj Kumarji, Secretary of MSME, Sri Bharat Khairaji, officers of the MSME Ministry, policy makers, industrial leaders and entrepreneurs, my Bhai Begnu from the my MSME family, sabko namaskar. The United Nations celebrates June 27th every year as Micro, Small and Medium Enterprises Day to recognize the extraordinary contribution of MSME across the world. In Bharat, the MSME are much more than an economic category alone. The MSME in Bharat, it represents the courage of a first generation entrepreneur. Most of us who are sitting here may be the first generation entrepreneurs. The determination of a woman who starts a home enterprise, the dreams of our youth, the resilience of countless small business and have transformed the challenges into opportunities. This is what the real spirit of our MSME in Bharat. I started my career also with MSME only. I completed my business administration graduation and I come back to home to start my small business. I started my small business. I went to my father and asked some capital for it. My father said, no. As usual, all the Orthodox fathers are very particular that their son should not be spoiled by money. So my father told me, you go for higher studies. I said, what I am going to do by going for higher studies? Again, I have to come back. I have to start my own industry. So after, with a lot of hesitation, in 1978, he gave me 25,000 rupees to start my own garment unit. Then he was watching me for a year. Lakhs is the only money I have taken from my family. Then after that, till today, I am contributing and I worked as the chairman of the Kayar board. When I was appointed as the Kayar board chairman, to be very frank with you, I don't know much about Kayar. I know only two Kayar. One Kayar is for pulling the car during the car festival. And another Kayar is that for which I have seen from when my young days, when I was a child. From that day, I used to see our mothers used to get water from the well. Only these two Kayars I know. But you need not worry about anything that you don't know something. Nobody knows everything. That we have to understand. So once the job has been given, we have to devote ourselves towards that job, then you will start learning everything. I met the very second day all the leading Kayar exporters of Kerala, because Kerala is the one place from where Kayar
products are being exported. I met them. I told them in my speech, in the beginning of my speech, in my introductory speech, I told them that I will double this Kayar exports within 3 years. Kayar board was started in the 1954. Till that time, I think they have achieved something around 800 crores per year or something. I couldn't remember exactly the figure. Then in their exporter speech, one of the leading exporter who was doing about 100 crores per year at that time, he told to me, I appreciate the optimism of the chairman, but he added another one single word. That is too ambitious goal. But again, you take it from me, if you decide something you want to achieve, nothing can stop you other than you. If you decide, you go for it, you do all your hard work towards it, you try to learn everything in that field, definitely you will achieve it. When I left Kayar board to contest the election, after 3.5 years, by 3 years my tenure was over. Then after seeing my achievements in the Kayar board, I got a call from PMO, and PM's secretary talked to me, and he told to me that PM wants to extend your tenure. I never expected it because my tenure was over, I was back home. Then PM want to extend it for another 2 years or so. Then again I was forced to resign because I have to contest an election. Office of Profits will come. So during the hot electioneering, I came here to Delhi to resign. By the time election was in full swing, I don't know whom I should meet and I should resign. So I met one officer, and that officer took the decision, yes, I will accept your resignation. Because it was a cabinet decision. So higher level officer only can accept it. So one officer came forward and he accepted mine, and he will forward the same thing to the cabinet secretary. By the time the Kayar export in that 3.5 years, it started in 1954. I joined in 2016. When I left by 2019, in the middle, the Kayar board export has tripled in those 3.5 years. While leaving the Kayar board chairman, I said I have created the basics, necessity, infrastructure, so this Kayar exports will reach in another 10 years' time 10,000 crores. I think now they are doing around 6,000, 6,500 crores now. So it is only the will and your involvement, nothing else. And you take any economy of the world, big companies will be seen outside. Because of that, we all will believe, including the MSME sector of us, will believe. You take Japan, Japan is only because of Yamaha or Mitsubishi or Sony or Toyota, like that. We all will think like that only. But we have to understand one thing, that all these big companies are big because of the contribution of the MSMEs.
There is no single economy in the world. You take Japanese economy, American economy, Holland economy, or German economy, or UK economy. Every economy has grown because of the greatest contribution is from one single sector, that is MSME. So when I became the CAIR board chairman, there will be MSME meeting, they will be inviting everyone. That time our Kalraj Misraji was the cabinet minister. And now the textile cabinet minister, Girirajji, was the minister MOS. In that I said, sir, the economy is growing. We have to alter the limits of the MSME. Nothing can be stagnant. When I proposed at least 100 crore investment should be treated as MSME, that time maximum limit was only 5 crores. With 5 crores, what you can import? If you make 1 lakh pieces also, all the 1 lakh pieces should be of uniform quality. So you need the most sophisticated lathes, you need the most sophisticated machineries, which are very precious, so that the quality and the uniformity of the product can be maintained. What Modi ji is talking about, zero tolerance towards quality is a must. When both the minister was very proudly telling, including our secretary was proudly telling, even today, 50% of Indian exports are from MSME because we are maintaining the quality. So I requested Kalraj Misra ji, you have to drastically change the limits. If you want to encourage the small people, we can add one more section in MSME, that cottage industry also should be encouraged. See, somebody should start. Yes, I started with 25,000. That time, it was not, of course, it is a good money at that time, 78, but it is not a very big money. So I started as a small, with only 6 stitching machines. So I have to grow. I have grown. Like that, we want to encourage every section of the MSME. So I told them we can encourage cottage industry also. But we don't want the cottage industry entrepreneur should be the cottage industry entrepreneur till his death. We want to grow him. Cottage industry entrepreneur should become small scale industry entrepreneur, small scale industry entrepreneur should become medium scale, and from medium scale he should promote himself to a larger scale. So nothing should be stagnant. Then very serious thoughts have been given to MSME sector, how to improve the limitations. I told them, if they have to import one single lathe, it is costing 100 crores. Then only they can match to the requirements of the industry. So many big car companies have come. So what was the car production in India before Maruti comes in? Ambassador and Fiat only was there. If you take one Ambassador car, you have to send it first to the garage. New Ambassador car, you are paying money and taking that Ambassador car has to be first sent to the garage for proper welding everywhere. There will be bend. That bend has to be taken up because it was all old die. That has never been changed because there is no need to change, because for that Ambassador also people are paying the money and where they were in the queue. Then you have to change the seat covers.
Sometimes you want to convert it from petrol to diesel. You have to convert that. That economy has gone. What was the production of cars today in 2016? Today it is very high. Even 2016 it was quite high. So the small scale sector has to meet the requirements of the industry, then only they can grow. Then the change has come. Today you are little bit more comfort than what we were in 1978 or so. Then again Modi ji has brought another very good legislation. If your payments are not made within 45 days for the MSME by the big companies, then that will not be taken up as an expense. Then whether they can take you for granted for the payment that you may supply the goods and you are in the queue for their payments, that's also come to an end. So my humble request to all of you is, and both the ministers and the secretary, my humble request is, make this MSME registration a compulsory for every industry, every sector of the industry. Because everything is based on the data available to your ministry. Fund allocation, what is to be done, how many clusters have to be created in each area. All these things, you can do it, you can plan it, you can implement it only with the data. So my humble request to all the MSME people who are sitting here, you make an awareness that every MSME should register themselves with the MSME ministry, so the proper data will reach them, sector-wise, industry-wise. That will make MSME ministry to understand your problems, to understand your needs in a better way. You should not think why formality, by registering with the government, what I am going to get. Anyway, I am getting everything from my bank by mortgaging my asset only. You should not think like that. Your data make their job much easier to understand your problems. So MSME sector should be more vibrant in the coming years too. For that, I am thankful to the ministry for adding dynamism in making the required changes then and then. That's why the growth of MSME is so much in our country. No single sector, MSME is not against big industry. Rather, cottage industry is not against MSME. We are doing our job at our levels. So everything has to be encouraged, but nothing should be stagnant. This is what I want to insist on my speech. I am always saying that this UN theme on this day is human-centered entrepreneurship is an AI-driven future. That is the concept they want to give. Again, so many people are so much afraid of what this AI will do. If AI comes, so much of people will be losing their job. We need not be that pessimistic. This is my humble request to all of you. When the computer got introduced in our country, so many people thought this is only for well-developed countries like Western Europe and America. It is not for us where the population is so much, the job opportunity we will be losing. Modern technology coming up. We have to adopt it. We have to use all the modern technology for uplifting our productivity, production, quality. We cannot keep away from the modern technological developments.
If that is the case, then we will be left out. So new changes will come. We have to adopt all the new good changes. We have to identify whether the change is good or bad. Then we have to adopt all the good changes. That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. All the figures have been given by both our ministers as well as by our secretary. So I am not going into these figures again. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. This is not a word just for feel happy. This is the reality. That is what we understand from the great contribution of the MSME. They have now become one of the strongest pillars. Yes, MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047. And I am sure we have opened so many portals today. This all we must utilize it in the proper way. If any trouble, any obstacle, any difficulty we find, we should not hesitate to bring to the knowledge of the ministry. How to improve it? How to utilize it in a better way? That suggestions also should be given to the MSME, because you are in the field. You know the difficulties better than the administrative people, because you are facing the difficulty in the field. So how to improve it? How to utilize every chance? How to maintain the quality? Unless we maintain the quality, future business is not guaranteed. One-time business may be okay, but one-time business, if we are interested, that is not the growth, that is the end of the growth. So we have to maintain the quality. We have to give better service than our competitors at a very competitive price. Cost effectiveness is a must in the present global business arena. Without cost effective, without going into the cost of a product, sometimes we get an order, sometimes we get a huge order also, but that will not sustain for the entire future. So we have to always think, we have to apply our mind how to cut the cost without cutting the quality. Cutting the cost at the cost of the quality is not the right thing. Cutting the cost to make our product more competitive without losing the quality, that is where the real success is there. So I urge upon all of you to use all these services for the future business career in a better way, in the most successful way. And our traditional artisans, we have seen in the presentation also, who have preserved India's civilizational heritage through generations. We have also received support through the PM's Vishwakarma scheme. What is this attitude of the MSME? We have to understand. They take individual entrepreneur to the medium scale entrepreneur. This is what is MSME is doing,
And I congratulate the MSME Ministry for that. I also congratulate the National Small Industries Corporation on its elevation to a Scheduled A company. They have shown the figures from how non-performing asset has come down from a high level to the low level today. For that, we have to understand the history of our MSME. Any MSME has to be taken care by the family only. 99.9% of the MSME is run by the family entrepreneurs. Son has to take over. Not all the old MSMEs has been taken over by the sons. By the time they reached their middle age, they don't know whether they have to go for modernization, but they don't want to take the risk. By not going for the modernization, they were slowly left behind, and they never able to do what the business they were doing when they were young. So many units become non-performing asset. Now again, and I am telling you, MSME owners are the only owners who give their all assets to the bank to get a bank loan. That is the goodness of all the MSMEs. Even their own house where they are living, that will be mortgaged to the bank, because they have more faith on the bank. But unfortunately, thorough change has come in MSME sector of India, overnight change, that all of a sudden the economy start growing, the needs of the MSME, the requirements of the MSME is entirely different. What the middle-aged man of 50 years, 55 years, 48 years he was doing, he couldn't put his step there, or he couldn't go back also. That is where most of the MSME failed in the last 2 decades. And now, because of all your efforts, new and more new startups are coming up. They are signing very well, and I request both of the ministers, you should take up the non-performing assets with the finance ministry. We should come with one single Samadhan scheme by all the banks, so that MSME people can pay back the loan with some concessions, and they can get out of their troubles. This is my humble request to you today. So on the outset, MSME sector is doing wonderfully well. The achievements of Khadi and the achievements of CAIR board has been very well presented in the presentation, video presentation. They have made a revolution in honey production. Khadi board has made a revolution in the honey production. They have made a revolution in the sales of garment sector, Khadi sector. These all are great achievements. And Khadi also has to undergo its own changes. It cannot live with the Gandhian thoughts alone. During the Gandhian thoughts, Sudesi is defined with a small term. We will produce from our village, and we will utilize that production. That is what is Sudesi. Can we stick to that Sudesi today? Because the whole world is changing. The economy is, size of the economy changes. Now what is Sudesi?
if an Apple phone is made in India, that is Swadeshi. So we cannot ignore the technological growth worldwide. We have to adopt it. Everybody wants quality. In the name of Gandhiji, we cannot sell a khadi, only white khadi shirt. That is no more possible. Because the world has changed, the taste has changed, the consumer state is totally changed. We have to adapt to it. Whatever our khadi craft makes, that is Swadeshi today. Because it is made in India. So the concept also has to grow according to the need of the industry. That is what I want to insist upon. And when we talk about khadi, I'll tell you, the Sarvodaya movement has started after Mahatma Gandhi has come to Tamil Nadu. And when you see the farmers are wearing only langot, and they were working in the arts, and then Mahatma Gandhi has changed his dress. I am from a small town known as Tirupur. That was the headquarters of Sarvodaya movement once upon a time. And after the regional offices has been made everywhere, that headquarters system has gone now. And even today, there are very few places where Mahatma Gandhiji's ash is being kept in a pot, and still it is worshipped every day. That headquarters of that Sarvodaya in my hometown Tirupur is having that ash today. Mahatma Gandhiji's ash today. So I am from such a small town which is having a great concern for Khadi movement and Swadeshi movement. That impresses me very well. That doesn't mean we stick to the old thoughts alone. We have to elaborate according to the need of the market, according to the need of the world industry. That change is coming up in Khadi. I am very proud of that. And Khadi should reach many milestones of sales from here. And I personally thank and praise both the ministers, the MSME officials, both Kayar Board and Khadi Board under MSME, for achieving this great milestone of great contribution for the economical growth of India. And your participation and contribution should go further from here. You should take the MSME to the next level with all your efforts. I am sure you will take it. With this, I wish you all every success in your all new endeavors. Thank you very much. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Long live Mother Bharat. Thank you. थैंक यू सो मच सर फॉर योर गाइडिंग वर्ड्स. आपके उत्प्रेरक उद्बोधन के लिए आपका बहुत बहुत आभार माननीय उपराष्ट्रपति जी. Your visionary words will undoubtedly inspire millions of entrepreneurs and stakeholders associated with the MSME ecosystem. एक बार जोरदार तालियां माननीय उपराष्ट्रपति जी के लिए. और अब सभी गणमान्य तिथिगण से अनुरोध करती हूं, कृपया राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. Shastra
और प्रस्तुत है राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा